Hello everyone. Today we are taking problem related to AC circuit. AC circuit may be especially there are the so many, but we are taking in starting that I is equal to I0 sin omega t, V is equal to V0 sin omega t. Then you know IRMS is equal to I0 upon under root 2. VRMS is equal to V0 upon under root 2. Then power formula P is equal to VRMS IRMS cos phi, and two more formula learning point you will do that. So these are the next two learning point. Time taken by the current to reach 0 to peak value, जहाँ maximum value maximum amplitude है, जहाँ पे maximum displacement है, amplitude है, that time taken t by 4. But time taken by current to reach 0 to RMS value, that is the half of this is the t by 8. Learn these 2 points, these are very important to solve numerical. So time taken by the current to reach from RMS to peak value, how much? T by 4 minus T by 8, that will become T by 8 also. Okay, so these are the formula we will use. Now let us start numerical. Here numerical is in this way. Peak value of an alternating current is 10 ampere and frequency is 60 hertz. Now frequency is given, I value is given. You will find the RMS value of current, how much time taken to current to reach from 0 to RMS value and peak value. Okay, so RMS value, you know I0 is equal to, this is equal to I0 upon under root 2. We have discussed this formula. So substitute here peak value 10 and under root 2, so you will solve, so here you will get 7 ampere. Now here t is equal to 1 upon f, time is equal to 1 upon frequency, so it will come 1 upon 60 second time. So time taken to reach RMS value from 0, that I told you, t by 8, substitute here value, then you will get 1 upon 480 seconds. Now time taken to reach peak value from 0, that I told you, this is the t by 4, double of this, that is 1 upon 60 into 4, it will come 1 upon 240 seconds. So this is the solution of this question. Now I am taking one more question. Now in this question, equation is given, that equation is I is equal to I0 t upon t1. Okay, डिफरेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम t1 ऑल्सो गिवन. यू विल फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके t1 तक के बीच में आपको करंट IRMS निकालना है. एंड इक्वेशन इज गिवन, इंस्टेंट इक्वेशन इज गिवन, I इज इक्वल टू I0 t अपॉन t1. अब हमें IRMS निकालना है, तो IRMS निकालने के लिए हम पहले इंस्टेंट करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर उसका अंडर रूट लेंगे. ओके, सो फर्स्ट इस इंस्टेंट इक्वेशन को फर्स्ट वी विल स्क्वायर एंड देन मीन. ओके, आई स्क्वायर देन मीन. मीन निकालने के लिए कंटिन्यूशन में जब चेंज होता है तो 0 से t इक्वेशन अपॉन जो है आपकी 0 से t जितना भी टाइम गया है dt. क्लियर? सो हियर वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इंस्टेंट करंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, I0 स्क्वायर अपॉन t अपॉन t1 स्क्वायर dt के साथ, और नीचे हो जाएगा हमारा 0 से t dt. अब व्हेन वी विल सॉल्व, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है t1 स्क्वायर वी कैन टेक आउटसाइड, I0 स्क्वायर ऑल्सो वी कैन टेक, एंड नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt का डिफरेंशियल t आएगा, और लिमिट लगाएंगे t1 से 0 तक. यहाँ अभी ऊपर डिफ्रेंशिएट बाद में करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में ये है हमारा t स्क्वायर dt. टी स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सारा कांस्टेंट उतारने के बाद और नीचे लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे इसका इंटीग्रल जब कर रहे हैं तो टी क्यूब अपॉन 3 आ रहा. अब इसमें भी लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इट विल कम I0 स्क्वायर अपॉन t1 की पावर 3, t1 की पावर 3 एंड 3, ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ हमारे पास सिर्फ ये रह गया जाएगा. और ये हमारा आया है जो हमने निकाला था यहाँ पे आई स्क्वायर के साथ मीन करने पे. अब हमें अंडर रूट लेना है IRMS के लिए, तो IRMS तो स्क्वायर रूट, तो इट विल कम I0 अपॉन रूट 3. तो चिल्ड्रन प्लीज़ लर्न कि ऑलवेज I0 अपॉन रूट 2 विल नॉट कम, मे बी I0 अपॉन रूट 3 कैन बी कम. सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि न्यूमेरिकल में जो इक्वेशन दी हो उससे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अंडर रूट 2 ही आए.
Okay, now we are taking one more numerical. In this question, in the given diagram, calculate the current flowing through 50 ohm and 400 ohm resistance and power given by the source. अब आपको डायग्राम इन दिस वे ऐसे दिया है, 7 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 50 ओम 100 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ इसके साथ ऐसे कनेक्ट है और यहाँ पे ये इस तरीके का बना हुआ है, ये 100, ये 200, ये 200, ये 400। इन दोनों का रेशो देखें तो 1/2, इसका भी रेशो 1/2 आ रहा है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का वाला जो डायग्राम है ये व्हीट स्टोन ब्रिज को शो कर रहा है। तो इसमें इसका रोल बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 1/2 और इसका भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, फिर इनका कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या वो कह रहा है। पहले बाय द सोर्स हमको रेजिस्टेंस पावर निकालनी है। ओके, अब पावर निकालने के लिए हमको इस सर्किट में पावर निकालनी, जो डीसी सर्किट का काम करते आए, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस के लिए जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना, इसका जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 300 × 600 अपॉन 300 + 600। ओके, क्योंकि दोनों जो है ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से 200 ओम आएगा। अब यानी ये पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज की जगह हम 200 ओम लगा सकते हैं। 200 ओम, 500 ओम, 100 ओम, तो ये तीनों कैसे आ जाएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो जाएगा 200 + 50 + 100 350 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमको पता लग गया, हमको करंट दी, वो हमको वोल्टेज दी हुई है, तो हमको करंट निकालने के लिए V = IR, V = IR फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे I निकाल लेंगे V/R से 7/350 0.02 एम्पियर या आपकी 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, I करंट ये दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक I1 में चली जा रही है, एक I2 में चली जा रही है। We can say I1 + I2 = the I, and I just now we calculated 20 milliampere. So in place of I we can write also I1 + I2। अब यहाँ पे ये दोनों, इसका तो रोल है ही नहीं, ये है 300, ये है 600, तो 300 × I1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो 300 × I1 और 600 × I2 वी कैन राइट इन दिस वे। और हमें यहाँ पे करंट I2 निकालनी है, तो I2 करंट अब हम निकाल सकते हैं। ये जो होगी 1/2 आपकी I1 की होगी। वी विल सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू, देन वी विल गेट I2। सो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग I2 = 20/3 मिली एम्पियर। ओके, तो 20/3 मिली एम्पियर ये हमारा 400 ओम के अक्रॉस जो पूछा गया था, उसके लिए करंट इतनी है। पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए V × I, हमारे पास 7 और 20 हमारे पास जो आपकी मिली एम्पियर करंट आई थी, पावर सर्किट ये निकालनी है, तो 140 मिली एम्पियर और 0.14 वाट आ गई। ओके, अब इसके बाद अगर ये AC सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, AC सोर्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे VRMS और IRMS का रोल आएगा। तो IRMS किसके बराबर हो जाएगा, चूँकि सर्किट में कंटेनिंग रेजिस्टेंस है, तो इम्पीडेंस में यानी कि R की Z की जगह R भी लिख सकते हैं, तो VRMS/R। अब सवाल ये है कि हमें VRMS IRMS कैसे मिलेगा। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है VT इंस्टेंट जो दी है, दैट इज़ द 7/√2 sin 100t। ये हमको V0 दिया हुआ है, और हमको जब पता है कि V0 पता हो तो VRMS पता करने में देरी नहीं लगती। VRMS के लिए V0/√2 करेंगे, तो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 7 वोल्ट आएगा। अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे पास DC सप्लाई की तरह 7 वोल्ट आ रहा है। अब पावर निकालनी है, एवरेज पावर, तो VRMS IRMS cos phi। अब चूँकि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो phi = 0, cos phi = 1। इन दिस सिचुएशन P = 7 × 20, अगेन द सेम वैल्यू विल कम 140 मिली वाट। ये यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा VRMS आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। अगर VRMS की इक्वेशन में डिफरेंट V0 दिया होता तो हमारे यहाँ पे पावर डिफरेंट आती। आई होप सो यू अंडरस्टूड कि हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हेन AC सोर्स इज गिवन और DC सोर्स इज गिवन। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ पसंद आया है तो देन लाइक दिस चैनल, और अगर इफ़ एनी डाउट इज़ देयर तो प्लीज़ सेंड मी मैसेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।